اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین محترم، موالیان ہدایت کرات، پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں اہل بیت سے محبت کے لیے کہہ رہا ہے، اور کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول، ان سے اچھا اس آیت میں 4 لفظ ہے. ایک اسألکم، ایک اجر ہے، یعنی کہ ایک سوال ہے. اسألکم یہ مطلب سوال ہوتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، دوسرا لفظ اجر ہے. الا المودۃ فی القربى، تیسرا مودت ہے اور چوتھا قربہ ہے. یہ سب سے پہلے تو یہیں پر ہم گفتگو کریں گے کہ اسألکم، رسول سے کہہ رہا ہے پروردگار کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجرت، ان سے کہہ دیجئے کہ تم اجرت کا میں کوئی سوال نہیں کرتا، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. رسول نے کوئی اجرت کا سوال نہیں کیا. لوگ آئے رسول کے پاس، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے بڑی محنتیں مشقتیں کی ہے، آپ نے بڑی ہمارے لیے جو ہے بہت محنتیں کی ہے، لہٰذا ہم آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا اے رسول قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس محنت کے عوض تم سے کوئی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یہاں پر سب سے پہلا لفظ جو ہے کہ جو ہے سوال. جہاں اس آیت میں سوال کا ذکر ہوا ہے، وہیں پر قرآن میں بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری جگہوں پر قرآن میں سوال کا ذکر ہوا ہے. مثال کے طور پر جیسے کوئی آیت ہے کہ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کیا گیا. یسألونک عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں سوال کیا گیا. یسألونک عن الشہر الحرام، شہر حرام کے بارے میں سوال کیا گیا. بہت ساری جگہوں پر سوال کیا گیا. لیکن مسئلہ یہاں پر صرف ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم پروردگار سے سوال کریں؟ کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم پروردگار سے سوال کریں؟ کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم پروردگار سے کہہ سکیں کہ پروردگار، رسول تو عالمین کے لیے رحمت للعالمین تھا، تو پھر مکہ ہی میں کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیا یہ سوال کر سکتے ہیں اللہ سے کہ پروردگار، ہندوستان میں بہت سی ساری جو ہے جگہ ہیں، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، لیکن کعبے کو مکے میں ہی کیوں رکھا؟ کیا ہم اللہ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ تو نے کربلا کو وہیں کی جو ہے عراق میں کیوں بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں بڑھ کر جواب دے رہا ہے کہ تمہارا حق سوال کرنا نہیں ہے، تمہارا حق ہے صرف تسلیم کر لینا. سوال تم سے وہ کر سکتا ہے، تم اس سے سوال نہیں کر سکتے. تم اس سے سوال نہیں کر سکتے، جواب پروردگار دے گا. آپ سوال اس سے مت کریے، وہ آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے. آپ نے اس سے سوال کیا کہ صرف اپنے حبیب کو رحمت للعالمین ہے تو مکے میں ہی کیوں اتارا؟ آپ سوال نہیں کر سکتے. وہ آپ سے سوال کرے گا کہ میں نے اپنے حبیب کو مکے میں بھیجا، تم نے مانا کہ نہیں مانا؟ وہ آپ سے سوال کرے گا کہ میں نے اپنا گھر مکے میں بنایا، تم نے طواف کیا کہ نہیں کیا؟
وہ آپ سے سوال کرے گا. آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے کہ پروردگار شہزادی کے دشمنوں کو پیدا ہی کیوں کیا. آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے. وہ آپ سے سوال کرے گا کہ ہم نے شہزادی کے دشمنوں کو پیدا کیا, تم نے تبرہ کیا کہ نہیں کیا. بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت. لہذا ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس سے سوال کر سکیں. اب جہاں پر روح کے بارے میں بھی سوال آیا, وہیں لوگوں نے کہا, قرآن میں سوال پیدا ہوا کہ یسألونک عن الروح, کہ سوال کریے کہ یہ روح کیا ہے. تو جواب دیا پروردگار نے, قل الامر من روح ربی, کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا امر ہے. اور پھر اس کے بعد ایک حدیث کے ذریعے سے یہیں پر روح کے بارے میں جب بتایا گیا تو پھر ایک حدیث کے ذریعے سے واضح کیا جائے. رسول فرماتے ہیں کہ ان فاطمۃ روحی التی بین جنبیہا, ان فاطمۃ روحی التی بین جنبیہا, فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے. فاطمہ میری وہ روح ہے کہ جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے. اب تفاسیر میں علماء تفسیر کرتے ہیں کہ دو پہلوؤں سے مراد ایک پہلو امامت ہے, دوسرا پہلو نبوت ہے. اور رسول فرما کیا رہے ہیں کہ فاطمہ بین روحی التی بین جنبیہا, فاطمہ اس کا مطلب ہے فاطمہ رسالت کی بھی روح ہے, فاطمہ امامت کی بھی روح ہے. جب تک روح نہ ہو جسم کا کوئی کام نہیں ہے. جب تک روح نہ ہو جسم کوئی کام کا نہیں ہے. اس کا مطلب اب پھر جملہ بدل کر کہوں میں کہ فاطمہ رسالت کی بھی زندگی ہے, فاطمہ امامت کی بھی زندگی ہے. اس کا مطلب اب اگر یہاں پر اس آیت کو پڑھا جائے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا, بس یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اب یہاں پر ایک ترجمہ اگر ہم اپنی زبانوں میں کریں تو پھر یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ فاطمہ رسالت کی بھی زندگی ہے, فاطمہ امامت کی بھی زندگی ہے. اب اگر ہمیں ترجمہ کرنا ہے تو پھر اس طرح سے کر سکتے ہیں ہم کہ رسول تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا اجر کے بارے میں مگر یہ کہ فاطمہ سے محبت کرو. بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت. مگر یہ کہ فاطمہ سے محبت کی جائے. اب دیکھ لیجئے, اگر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار شہزادی کونین کو جو ہے, یہاں تو بہت ساری تفصیلی بحث نہیں چھیڑ سکتا کیونکہ ایک جو ہے زمین تیار کرنا پڑے گا پوری بحث کرنے کے لیے. بہرحال اللہ رسالت کی زندگی فاطمہ, امامت کی زندگی فاطمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو پہلوؤں کے درمیان فاطمہ تو روحی التی بین جنبیہا, فاطمہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے, اور درمیان ہی کو مرکز کہا جاتا ہے, اور درمیان ہی کو مرکز کہا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, ایک سرکل بنائیے, ایک سرکل بنائیے جو اسکول وغیرہ کالجز وغیرہ جاتے ہیں بتائیں گے کہ جو پرکار جسے کہا جاتا ہے, پرکار جو ایک میں پینسل لگی ہوئی رہتی ہے اور دوسرا نوک رہتا ہے. اس نوک کو سینٹر میں رکھ کر گھمایا جائے تب سرکل بنتا ہے. اگر مین جو درمیانی جو پوائنٹ ہے اگر وہ نہ ہو تو ممکن ہے کہ سرکل آپ کا بن جائے گا مگر بالکل برابر نہیں بنے گا, بالکل برابر سے آپ کا سرکل نہیں بنے گا. اس سینٹر کے ہونے کی وجہ سے آپ کا سرکل بالکل برابری سے بن رہا ہے. اس کا مطلب اسی سرکل کو ہم کہتے ہیں فاطمہ, اسی پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں فاطمہ, اور اسی سرکل کو ہم کہتے ہیں رسالت امامت. صلوات پڑھیں محمد لہذا غور فرمائیے گا کہ اگر وہ سینٹر نہ ہوتا
यानी अगर फातिमा ना होती तो इमामत भी ना होती। और इसकी तो दलील देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह खुद हदीस कुदसी में फरमा चुका है कि ए रसूल वाली तुम दोनों को भी खल्क ना करता। अल्लाह का लिमा खलक तो कुमा, क्यों? अगर फातिमा ना होती, अगर फातिमा ना होती तो अल्लाह इन दोनों को खल्क ना करता। लिहाजा परवरदिगार बताना ये चाह रहा है कि मेरी जो कनीज खास है वो इमामत का भी सेंटर है और नबूवत का भी सेंटर है। इसीलिए हम जब आयत तत्हीर पढ़ते हैं कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, कि जब अल्लाह चादर वाली बात करता है और उस चादर वालों में जब पहचान करवाता है तो फिर मरकज के जरिए पहचान करवाता है। हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, सेंटर के जरिए तारुफ करा रहे परवरदिगार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिहाजा आयत तत्हीर में तारुफ अगर कराया है परवरदिगार ने तो सेंटर के जरिए से तारुफ करवाया है, इसलिए कि परवरदिगार को पता था कि अगर ये सेंटर ना होगा तो फिर सर्कल ही नहीं बनेगा। इसीलिए परवरदिगार ने सेंटर के जरिए कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। और फरमाया, क्या फरमाया पहले आयत तत्हीर में, इन्नमा युरीदुल्लाह, लफ्ज ये इन्नमा पर ही अगर रोका जाए तो ये इन्नमा अगर अरबी ग्रामर के हवाले से देखा जाए तो ये इन्नमा लफ्ज मारिफा है। इन्नमा लफ्ज मारिफा, मारिफा कहते हैं उस चीज को, या आपकी जबान में कहूँ मारिफत दीवार को कहा जाता है, दीवार को मारिफा कहा जाता है। यानी जो फर्क बताती है कि जैसे अंदर वाले हैं वैसे बाहर वाले नहीं हैं। जो फर्क बताता है, मिसाल के तौर पर और आयत अगर ले लो कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, कि अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल तुम्हारा वली। यानी ये दीवार बता रही है कि जैसे अंदर वाले हैं वैसे बाहर वाले नहीं हैं। दुनिया में तो बहुत से लोग हैं लेकिन वली सिर्फ अल्लाह है। दुनिया में बहुत से लोग हैं लेकिन वली सिर्फ रसूल है। दुनिया में तो बहुत से लोग हैं लेकिन वली सिर्फ वही है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह, जैसे अंदर वाले हैं वैसे बाहर वाले नहीं है। इसका मतलब अंदर वाले अलग हैं, बाहर वाले अलग हैं। इसीलिए आपने देखा नहीं कि जब चादर तत्हीर में सब जमा हो गए तो उम्मे सलमा ने इजाजत मांगी कि या रसूल अल्लाह मैं भी अंदर आ सकती हूँ। तो रसूल ने कहा सलमा तुम खैर पर हो, तुम खैर पर हो। ये रसूल का खैर पर कहना बताता है कि अंदर वाले और हैं तुम और हो, अंदर वाले और हैं तुम और हो। उसके बाद आगे बढ़ जाइए इसी आयत में, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, रिज्स। या अब इसी रिज्स पे मैं आखिरी गुफ्तगू करके मजलिस को तमाम करता हूँ। ये रिज्स है क्या? कुरान में परवरदिगार आलम सूरह मुबारक तौबा, दुरूद पढ़ मोहम्मद देखिए, बहरहाल मैं आयत नंबर की कोशिश कर रहा था बताने की, बहरहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन सूरह तौबा है। सूरह तौबा में आप अगर चेक करेंगे तो ये आयत मिल जाएगी। जब जंग ओहद से कुछ भागे हुए लोग रसूल के पास आ रहे थे, ये रिज से क्या है जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने सूरह आयत तत्हीर में बयान की है, रिज से है क्या। वापस जंग के जो है भागे हुए लोग रसूल के पास आ रहे थे तो अल्लाह ने आयत भेजी, ए मेरा रसूल ये जंग के भागे हुए लोग आपके पास आ रहे हैं। रसूल ने कहा परवरदिगार करना क्या है?
कहा फ़अअरिज़ू अन्हुम, तुम इनसे अपना मुंह फेर लेना, तुम इनसे अपना मुंह फेर लेना। परवरदिगार क्यों मुंह फेर लेना? इन्नहुम रिजसुन, इन्नहुम रिजसुन, ये सारे के सारे रिजस है। तुम्हें क्या करना है? ये सारे रिजस आ रहे हैं, तुम्हें करना क्या है? अपना मुंह फेर लेना है। जंग का मरकज है रसूल, आए ततहीर की मरकज है फातिमा। जंग के एतबार से रिज्स वो होगा जिससे रसूल मुंह फेर ले, और आए ततहीर के एतबार से रिज्स वो है जिससे फातिमा को अपना मुंह फेर ले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बीबी का हक खाने वालों पे लानत, बेशुमार लानत। जिससे फातिमा अपना मुंह फेर ले, वो फिर सारे के सारे रिज्स हैं। अब लाख कोई मुसलमान कहता रहे, हम तो कुरान की आयतों पर अमल करके इन्नहुम रिजसुन की जो है तस्दीक करते रहेंगे, और इन्नहुम रिजसुन का ताज उनके सरों पर पहनाते रहेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद लिहाजा मरकज बनाया है अल्लाह ने फातिमा को। हदीस कुदसी से लेकर आयत ततहीर तक आप देख लीजिए, हर जगह अल्लाह ने फातिमा को मरकज बनाया है। जहाँ जहाँ भी आप हदीसें, और इस एतबार से हवाले आपको अपनी ही नहीं, उनकी भी किताबों में आपको इस बारे में हवाला बहुत मिल सकता है। और ये अभी जो अय्याम फातिमिया चल रहा है, हम लोग ये समझते हैं कि जो है रसूल की शहादत के बाद से शहजादी का मसला शुरू हुआ है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि शहजादी का मसला गदीर से शुरू हुआ है। लेकिन मसला ये है कि हम लोग उतनी दूर तक जा नहीं पाते। हकीकत तो यही है कि अभी छेड़ने बैठूं तो फिर बहुत सारा टाइम चला जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हकीकत में जो है अय्याम फातिमिया अय्याम गदीर से शुरू हुआ है कि जब अल्लाह ने रसूल के जरिए रसूल से कहा कि या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये जो आखिरी का टुकड़ा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये बताता है कि अय्याम अज़ाए फातिमिया अय्याम गदीर से शुरू हुई। ये टुकड़ा बताता है। क्या क्या कहा परवरदिगार ने? ए मेरे हबीब पहुंचा दीजिए जो आप पर नाजिल किया जा चुका है, या रसूल जो आप पर पहले बता चुका गया, या अगर तुमने इसको ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम तुमने अंजाम ही नहीं दिया। और ए मेरे रसूल घबराना नहीं, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, दुश्मनों के शर से हम तुम्हें महफूज रखेंगे। क्या कहना सुभान अल्लाह। दुश्मनों के शर से हम तुम्हें महफूज रखेंगे। भाई ये अल्लाह का ये कहना कि दुश्मनों के शर से हम महफूज रखेंगे, यही बता रहा है कि कोई शर था कि जिससे बचाने के लिए। इसका मतलब ये आये बल्लिग ये बता रही है कि इसके पहले भी रसूल से कहा जा चुका है कि ये पहुंचाइए। तब रसूल ने कहा था कि परवरदिगार ये शर का खौफ है। उसके बाद आयत के जरिए अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। और ये लफ्ज शर जो परवरदिगार कह रहा है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, दुश्मनों के शर से हम तुम्हें महफूज रखेंगे। यहाँ नाम बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शर के नुक्ते जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा शर कौन है। 1 2 3 पे लाना। सिर्फ शर के नुक्ते से पहचान सकते हैं आप कि ये शर कौन है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, घबराना नहीं, ये हम तुम्हें महफूज रखेंगे। और उसके बाद ऐलान विलायत करने के बाद जब रसूल ने अब अली से कहा कि अली बैठ जाइए खैमे के पास, और सबसे कहा कि जाओ बैत कर लो। अली के हाथों पर तवज्जो दीजिएगा, सारे लोग बैत करते रहे। गौर फरमाइएगा कहाँ से शुरू हुआ है। सारे लोग बैत करने के लिए आए और सबने बैत की, और बैत करने के बाद जो
रसूल ने कहा कि रसूल अली अब मेरे खानदान की औरतें आ रही है, अब मेरे खानदान की औरतें आ रही हैं। मौलाना कायनात ने कहा कि बैत तो इस तरीके से होती है, बैत ऐसे होती है। अब वो अली हाथ मिलाए तो कैसे मिलाए? रसूल ने कहा तुम ऐसा करो, एक जो है किसी ज़र्फ में पानी ले लो, अली उसमें अपना हाथ डालकर निकाल लेंगे, बाकी सारी औरतें एक एक करके आएगी, उसी पानी में अपना हाथ डालते रहेगी, यानी बैत हो जाएगी। जब सारी औरतें बैत करने के लिए आई तो मौलाए कायनात ने एक जुमला कहा। मौलाए कायनात ने कहा कि जो भी आज के दिन बैत कर रहा है, खबरदार आगे चलकर कोई इस बैत को तोड़ना नहीं। आगे चलकर कोई इस बैत को तोड़ना नहीं। कौन कर रहा था बैत? रसूल के खानदान की औरतें। रसूल के खानदान की औरतें बैत कर रही थी और अल्लाह अली ने कहा कि खबरदार कोई बैत को इंसाफ से बताइए। अगर मिसाल के तौर पर हम में से अगर कोई खानदान की औरतें बैत करती और कोई ऐसा कह दे जाके लड़ने लगे भाई जाकर कि भाई हमारी खानदान की औरतों को ऐसा कह रहा है, तो यहाँ पर इंसाफ तो यही बताता है कि रसूल को भी कहना चाहिए था कि अली तुमने ये क्यों कहा। रसूल का खामोश रहना बताता है कि कोई औरत थी जिस पर शक था। मोहम्मद इमाम अली के दुश्मनों पे लाना, उम्र लाना, रसूल का खामोश रहना बता रहा है कि कोई तो औरत थी कि जिस पर शक था, और रसूल की जिस वक्त आंख बंद होने वाली थी तब इसी औरत ने सुन लिया था कि अब अली तलवार नहीं उठाएंगे। अब जो करना है वो करना है। यही मसला है कि रसूल की आंख बंद होने के 3 दिन बाद ही फातिमा का दरवाजा जलाया गया। तो मेन अय्याम अज़ाए फातिमिया शुरू हुई है गदीर से। गदीर से शुरू हुई है। इसी औरत ने जिस पर शक गदीर में था, उसी औरत ने ये फेल अंजाम दिया कि जो कह दिया कि आप जो करना है चाहो कर सकते हो, अली अब तलवार नहीं उठाएंगे, इसलिए कि वसीयत कर चुके हैं। सलवात पर मोहम्मद। इसकी बहुत सारी अभी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन चूंकि हालात वैसे नहीं है और बहरहाल एक दौर दुरूद पड़े मोहम्मद वाले। बहरहाल इसीलिए कहा जाता है कि गदीर को ना भुलाया गया। जो आमतौर पर जो कहा जाता है कि गदीर को ना भुलाया जाए। देखिए साहब, हमारे यहाँ तो मसला ये है कि अभी जो है बहरहाल हर जगह तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हमारे कुछ जगहों पर ऐसा है, जैसे नहीं यहाँ की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बहुत अच्छे खासे लोग हैं। गौर सलावत पर मोहम्मद क्या फरमाया कि गदीर को ना भुलाया। खुदा की कसम बहुत सारी जगह ऐसा है कि अगर इस्लाम से कोई मफाद ना मिलता तो गदीर को भी भुला देते। लेकिन इसीलिए देखिए, और अभी तो ये तो एक जो है लोगों ने प्लानिंग करना शुरू कर दी है कि कैसे शियत को जो है ख़त्म किया जाए। यही वजह है कि जो आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने जिस चीज़ की ताकीद की है, अभी तो हमसे एक चीज़ की ताकीद जो अय्याम फातिमा, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल
यहाँ पर हुआ है, वरना वहीद खुरासानी के अगर फतवे के मुताबिक जाएँ, नहीं बहरहाल फतवा तो नहीं है लेकिन उनका ऐलान है, उनका ऐलान ये भी है कि आप जो है मसलन जनाब मोहसिन की शहादत का पूरा पूरा अशरा कराइए, अय्याम फातिमिया का पूरा पूरा 20 दिन मजलिस चलने दीजिए, इमाम मुसा कासिम का जो है अशरा करवाइए, ये सारी चीज़ें जो है ये ऐसा मत समझिए कि मैं मेरे फायदे मत कराइए, आप सलवार पढ़े मोहम्मद। बहरहाल मैं एक आलिम दीन की बात को नकल कर रहा हूँ, मैं मेरे फायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, एक और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। लिहाजा ये आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का ये जुमला है। यही वजह है दोस्तों के हमारे इस्लाम में जिस चीज़ पर ताकीद ज़्यादा की जाती है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। अगर अय्याम फातिमिया मनाने की ताकीद की जा रही है तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि लोग इसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, या इसे भुलाने की प्लानिंग चल रही है कि कैसे शीयत में इस अय्याम को हटा दिया जाए। और जनाब मोहसिन का तो बहरहाल वैसे भी जो है वो अय्याम मजलूम ही है। अभी देख लीजिए आप, पहले तो कभी होता नहीं था, अभी अभी शुरू हो गया है जनाब मोहसिन की शहादत, अभी अभी जो है बहुत सी जगह मनाया जा रहा है और जो है मजलिसें कायम हो रही है। बहरहाल देखिए कोई किसी चीज़ का इजाफा होना सवाल पैदा नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ का अगर इजाफा हो रहा है तो सवाल, मैंने कभी जो है कहा था कि जो है जैसे ये सवाल किसी मजलिस में मैंने कहा था कि जो है ज़्यादा जो चीज़ हो रही हो और उससे अगर इंसान बोर हो रहा है तो फिर उसको कम करते रहिए उससे। और उसकी मिसाल भी मैंने दी थी कि इंसान पैसा भी ज़्यादा कमा रहा है, अगर ज़्यादा कमाने के बाद जो बोर होता है तो फिर उसको भी कम करिए। सांसें बहुत ज़्यादा ले रहा है उसे भी कम किया जाए। लिहाजा ये चीज़ जो है बहरहाल एक दुरूद पढ़े मोहम्मद। बहरहाल लिहाजा ये सारी चीज़ें इंसान जो है गौर करे और गौर फिक्र करे और मेन जड़ को तलाश किया जाए कि ये कहाँ से जो है साजिश चल रही है, किस किस चीज़ को भुलाने की साजिश हो रही है। और खुदा की कसम मैं तो ये कहता हूँ कि जिस चीज़ को भुलाने की कोशिश की जा रही है, साजिशें की जा रही है, उसी चीज़ को ज़्यादा मनाया जाए, ताकि इमाम हमारी इस काविशों और इस मेहनतों को देखकर खुश हुए और बिल्कुल इमाम को ये कहना पड़ जाए कि कल हमने बातिल को कुछ करने नहीं दिया, आज हमारे चाहने वाले बीबी ज़हरा के कातिलों पे लानत। नारे हैदरी यारी, नारे हैदरी यारी। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों वाक़ई ये अय्याम अज़ाए फातिमिया आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि यह आशूर से कम नहीं है। लिहाजा जिस तरह हम आशूरा मनाते हैं उसी तरह इस अय्याम को मनाते हैं, इसलिए कि यह अय्याम उस बीवी का है जो इमामत की भी रूह है और रिसालत की भी रूह है। इसे अगर भुला दिया गया तो दुनिया रिसालत को भी भुला देगी और इमामत को भी भुला देगी। यही वजह है मेरे अज़ीज़ों कि दुश्मनों ने लाख कोशिश की कि सैयदा को भी मिटा दिया जाए और सैयदा से मंसूब चीज़ों को भी मिटा दिया जाए। लिहाजा आपने गौर नहीं किया कि इसीलिए हम कहते हैं कि सैयदा इतनी मजलूम है कि आज भी यकीनन जालिमों से उस बीबी को डर है, इसीलिए मौलाए कायनात ने असल कब्र भी छुपा करके रखा है। किसी नहीं पता मेरे अजीज़ों कि जन्नतुल बकी ही में है, नहीं, जन्नतुल बकी में तो इसलिए कहा जाता है कि इमाम है, जनाब उम्मुल बनीन है और जनाब खदीजा वगैरह वहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि
जनाब सैयदा भी यहीं होंगी, मगर असल कब्र किसी को नहीं पता है जनाब सैयदा की। और दुश्मनों ने बहुत मिटाने की कोशिश की, इसीलिए अली ने 40 कब्रें बनाई है मेरे अज़ीज़ों, 40 कब्रें सैयदा की बनाई, ताकि दुश्मन परेशान हो जाए कि असल कब्र कौन सी है सैयदा की। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, ये वही मजलूम बीवी है कि जिसको मिटाने के लिए और जिससे मंसूब चीज़ों को मिटाने के लिए रसूल की आँख बंद होने के 3 दिन के बाद से दरवाज़ा जला दिया गया। ये वही बीवी है कि जिसका पाया शिकस्ता हो गया, ये वही बीवी है कि जिसकी 3 पसलियाँ बाहर आ गई, ये वही बीवी है कि जिसका हाथ शिकस्ता हो गया। मजलूम करबला, इतनी मजलूम बीवी है ये शहजादी फातिमा ज़हरा कि इनकी मजलूमियत का अंदाज़ा लगाना हो तो कुछ इस तरह से लगाया जा सकता है कि जब दरबार से वापस आई और दर जला दिया गया तो वो बीवी इतनी मजलूम हो गई कि हाथ से तस्बीह भी नहीं पढ़ सकती थी, हाथ से तस्बीह भी नहीं पढ़ पा रही थी। मजलूम करबला, मगर सब्र देखिए जनाब सैयदा का, इतनी तकलीफें और इतनी मुसीबतें उठाने के बाद भी हर जख्म अली से छुपाया है। वो तो जब अली गुस्ल के लिए अंदर हुजरे में गुस्ल खाने में अंदर तशरीफ ले गए, जब देखा कि सैयदा का एक हाथ पसलियों पर है, एक हाथ रुखसारों पर है, फौरन रिवायत कहती है कि अली ने एक चीख मारी। सलमान ने पूछा कि मौला आपने इतनी चीखें क्यों मारी है? तो एक मर्तबा अली कहते हैं सलमान, ज़हरा ने इतनी तकलीफें उठाई है लेकिन आज तक बताया नहीं। रसूल की बेटी ज़हरा पसलियां टूट चुकी थी, हाथ शिकस्ता हो चुका था, लेकिन कभी अली से अपने जख्मों को जाहिर नहीं किया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अन्ता अस्समीउल अलीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। हमारे यहाँ तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारी इस मुख्तसर सी मजलिस को अपनी बारगाह में कबूलियत अनायत फरमा। हमारे यहाँ तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि कातिल जनाब सैयदा और जिसने भी जनाब सैयदा पर जुल्म किया है उन सबको वासिले जहन्नम में जलाना है। परवरदिगारो तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का खुद अपनी उन जालिमों पर लानत फरमा। अल्लाह जल्द अज जल्द आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा और हमें इस लायक बना कि हम उनकी आवाज़ और अंसार में शरीक हो सकें। आप हज़रात से